کراچی میں جاری بارشوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ کراچی کے کون سے علاقوں میں بارش کا پانی نکاسی کا کام شروع نہ ہو سکا؟ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز خان سے۔ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ شب سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا جو ہے وہ سلسلہ گزشتہ شب سے ہی جاری ہے، اور حالیہ بارشوں کے بعد کراچی کی سڑکیں، گلی محلوں کی حالتیں جو ہے انتہائی ابتر ہو گئی ہیں۔ اس وقت ہم گلشن اقبال 13 ڈی میں موجود ہیں، جو کہ کراچی کا پوش علاقہ ہے، اور یہاں پر میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ بارش کا پانی یہاں پر جمع ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والی جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں، ان کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ شب میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہر کی جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر جو بارش کا پانی جمع تھا اس کی نکاسی کا انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن شاید گلشن اقبال کا یہ علاقہ میئر کراچی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور پوش علاقہ ہے، اس طرف جو ہے کسی نے توجہ نہیں دی، نہ کوئی بلدیاتی ادارے کا نمائندہ یہاں پر موجود ہے جو کہ اس جمع پانی کو یہاں سے نکال سکے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کر سکے۔ جی میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے مشینری موجود ہے۔ شہر میں 3 گھنٹے سے زائد سفر کیا ہے، لیکن مشکلات نظر نہیں آئیں۔ جنہوں نے شہر میں راج کیا وہ کچھ نہیں کر سکے، نظام نہیں بنا پائے۔ آنے والا وقت کراچی کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں اس وقت کشتی میں نہیں ہوں، آپ اس وقت کشتی میں نہیں ہیں، آپ لوگ بھی کشتی میں نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر اپنے الحمدللہ پیروں پر کھڑے ہیں۔ آپ سامنے آدھا شہر میں ٹریول کر کے آئے ہیں، بائی اینڈ لارج شہر کلیئر تھا۔ اندرونی گلیوں میں چیلنجز بالکل آتے ہیں۔ نیپا کی شکایت ملی، ہم نے لوکل انتظامیہ سے بات کی، لوکل انتظامیہ یہاں پر موجود ہے اور وہ پانی کو ڈرین آؤٹ کر رہی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کام نہیں ہوتا، وہ بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ پچھلے کتنے سال ان لوگوں نے شہر کے اوپر راج کیا، لیکن وہ نظام نہیں بنا پائے کہ لوگوں کو اس طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اب ہم اس جگہ پر موجود ہیں، ہم نظام بنا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت اس شہر کراچی کے لیے اور اس کی عوام کے لیے بہتر۔ کراچی میں تھوڑی سی برسات نے سڑکوں کی ناقص تعمیرات کا پول کھول دیا ہے۔ اسٹیڈیم روڈ سمیت متعدد چھوٹی بڑی سڑکیں تباہی کا شکار ہونے سے ٹریفک متاثر اور شہری سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے علی مہدی سے۔ جی علی، بتائیے گا کہ سڑکوں کی حالت زار اور انتظامیہ اقدامات سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں تھوڑی سی برسات نے سڑکوں کی ناقص تعمیرات کا پول کھول دیا ہے۔ شہر میں برسات کے بعد متعدد سڑکیں ٹوٹ کر شکار نظر آتی ہیں۔ سڑکوں پر بڑے بڑے گھڑے ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس وقت میں نیشنل اسٹیڈیم روڈ پہ موجود ہوں۔ بڑے بڑے گھڑے ہونے کے باعث بری طرح تباہی کا شکار نظر آتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پہ جس طرح سے اس کا مٹیریل باہر آ چکا ہے، پتھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے نکل رہے ہیں، اور اس سڑک سے ملحقہ جو یہ نیشنل اسٹیڈیم فلائی اوور ہے، اس میں بھی بڑے بڑے گھڑے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم میئر کراچی کا کہنا ہے کہ برسات کا سیزن ختم ہونے کے بعد 20 ستمبر کے بعد سڑکوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد سڑکوں کی تعمیر شروع کی جائے گی۔ تاہم شہریوں کو کہنا ہے کہ ممکنہ مشکلات سے بچانے کے لیے عارضی اقدامات بھی ضروری ہیں، گڑھوں کو بھرنا ضروری ہے تاکہ ان کی مشکلات کم سے کم ہو سکیں۔ جی، سندھ کی ساحلی پٹی میں محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا دوسرا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ڈیپ ڈپریشن کراچی کے جنوب مشرق میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے رتابہ عروس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رتابہ، ٹراپیکل سائیکلون کا دوسرا الرٹ جاری کیا گیا ہے، چیف میٹرولوجسٹ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دوسرا الرٹ جاری کیا گیا محکمہ کے مطابق، اور آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ کراچی کے جنوب مشرق میں 200 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے ڈیپ ڈپریشن۔ اس کا جو ہے وہ قوی امکان بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگے جو ہے وہ جنوب مغرب کی سمت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک جو اس کی ڈائریکشن ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ کراچی کو ہٹ نہیں کرے گا، لیکن کراچی یہاں پر جو سندھ کی ساحلی پٹی ہے، بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے، وہاں پر اس کے زیر اثر جو ہے وہ موسلادھار شدید موسلادھار بارشیں ہوں گی، تیز
तेज़ हवाओं के साथ ये बारिशों का सिलसिला जो है कि आज और कल जारी रहेगा। इसके हिट करने का इसका जो है डीप डिप्रेशन जो है इसको समुद्री तूफ़ान में भी बताया जा रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है। मुमकिन तौर पर ये आज दोपहर या शाम तक जो है समुद्री तूफ़ान में कन्वर्ट होगा। फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो और वाज़ेह होगी कि किस तरफ हिट करेगा। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इसके ज़ेर असर कराची में आज भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी कराची शहर में रात में जो है वो शदीद मौसलाधार बारिश हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला इसी तरह से अगले 2 रोज़ जो है वो मज़ीद बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया रुताब आपका। दूसरी जानिब ठट्ठा में समुद्री तूफान के पेश नजर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शिकारपुर जाने वाले माहीगीरों को वापस साहिल समंदर पर बुला लिया गया। तमाम महकमों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं, जबकि लोगों को जजीरों से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। ठट्टा में मुमकिन समुद्री तूफान के पेश नज़र जिला इंतजामिया ठट्टा ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और साहिल समंदर के अंदर जो लांचें गई हुई हैं शिकार के लिए उनको फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया है और जो लोग समंदर के अंदर जजीरों पर रहते हैं उनको वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस टाइम साहिल समंदर पर रेड अलर्ट जारी है। पूरी इमरजेंसी नाफिज करके तमाम महकमों के अफसरान जो है उनको वहाँ भेज दिया गया है और उनके जो मुतासरीन हैं उनके लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने अपना कैंप वहाँ कायम कर दिया है। तो इस टाइम जो है साहिल समंदर पर पोजीशन ये है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और लोगों में खौफ और हरास पाया जा रहा है। वो लोग परेशान हैं कि अगर समुद्री तूफान हो गया तो क्या होगा। जी और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि झगनल मुल्क और इसके अलावा बेरूटा और रेती के इलाके में कपास की फसल भी मुतासिर हुई है। और अभी आपको बताएं कि रोलोरालाई में रात गए बारिश से शेर कड्डी नदी और इसके अलावा दीगर नदी में तुग़यानी है, जबकि सरदार गाजी खान मोहल्ले में पानी घरों में दाखिल हो गया है। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। इंतजामिया ने शहरियों को पानी जमा होने वाले मकामात से दूर रहने की हिदायत कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मानसून बारिशों की सूरत हाल। पंजाब के दरियाओं, बराजेस और डैम से पानी की सतह से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और इसके डिवीजन्स में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी है। 24 घंटे से मंगला 147, मंडी बहाउद्दीन 78, जेहलम 76, टोबा टैक्सिंग 40, गुजरात 35, नारोवाल में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है, जबकि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में तरमीम मंजूरी के लिए भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार हो गया, जबकि पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। वेलकम बैक। बैंकों और मिनी चेंजर्स के लिए तरसीलाते ज़र बढ़ाने की स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। मिनी चेंजर्स को तरसीलाते ज़र बैंकों में डिक्लेयर करने पर $2 फी डॉलर मिलेंगे, जबकि स्कीम के मंजूरी से बैंकों और मनी चेंजर्स में तरसीलाते ज़र मजीद बढ़ेंगे। एक्सचेंज कंपनी में को $25 मिलियन या 5% की ग्रोथ पर इजाफी मुनाफा भी मिलेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी, माली साल 2034 तक वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी हैं कि तरसीलात ज़र $60 अरब तक का हदफ मुकर्रर किया जाए। तो उसके लिए जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो स्कीम मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, सरमायाकारी के मौके फ़राहम किए जा रहे हैं। इसी तरह बैंकों के लिए और जो मनी चेंजर्स हैं जो रेमिटेंस वसूल करते हैं और रेमिटेंस कन्वर्ट करके आगे लोगों को फ़राहम करते हैं, उनके लिए भी स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। जो स्कीम पहले थी उनकी रिवीजन की गई है और उन पर जो मुनाफा है उसमें इजाफा कर दिया गया है। जो
गुज़िश्ता रोज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में स्कीम्स की मंजूरी दी गई है, उसके मुताबिक मजमूई तौर पर इसके लिए जो फाइनेंशियली मनी चेंजर्स और बैंकों को मुनाफा होगा, इसमें तकरीबन 70 से 75 अरब रुपए का उनको प्रॉफिट मिलेगा अगर वो मुतलका जो अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जो स्कीम्स हैं उनके खदोखाल ये हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गुज़श्ता माली साल की निस्बत मनी चेंजर 10% ज़्यादा तरसीलात ज़र वसूल करते हैं तो उनको $1 के इवज़ ₹1 से बढ़ाकर ₹2 और ₹2 से बढ़ाकर ₹3, और अगर उससे भी हदफ से ज़्यादा वो तरसीलात ज़र वसूल करते हैं तो उनको $1 के अगेंस्ट में ₹4 तक प्रॉफिट मिलेगा। साथ साथ कमर्शियल जो बैंक हैं जो रेमिटेंस वसूल कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ किया गया है, और बेसिकली जो रेमिटेंस वसूल करते हैं उनको प्रॉफिट मार्जिन सऊदी अरब रियाल में दिया जाता है। सऊदी अरब रियाल को रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा और रुपये को उसके अगेंस्ट में फिर डॉलर में कन्वर्ट करके जो करेंसी होगी उसमें प्रॉफिट अदा किया जा सकेगा। जो बैंकों को और जो मनी चेंजर्स हैं इनको प्रॉफिट अदा करने का ये तरीकाकार पुराना है, जिस पर एक माहिरीन मुआशियात और जो वजारत ख़जाना ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि आइंदा पॉलिसी रिवीजन में इसको चेंज भी किया जा सके, लेकिन फ़िलहाल इसी की रिवीजन की अप्रूवल दी गई है। अब जो बताया जा रहा है वजारत ख़जाना हकाम की जानिब से कि जो ये स्कीमें मंजूर की गई हैं रेमिटेंस बढ़ाने के लिए, इसमें एनुअली तकरीबन इससे 10% तरसीलात। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास, मुतफ़िका फैसला किया गया है कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में कहा गया कि इतनी सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग सीजन शुरू करना नाकाबिले अमल है। एसोसिएशन की जानिब से मुतफ़िका फैसला किया गया कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन शुरू नहीं होगा। ये भी वाज़ेह किया गया कि क्रशिंग सीजन शुगर इंडस्ट्री की सूबाई और फेडरल की सतह पर मुकम्मल डीरेगुलेशन तक भी शुरू नहीं होगा। यह मुतालबा किया गया कि शुगर इंडस्ट्री को गंदम, चावल और मकई की फसलों की तरह फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। एसोसिएशन ने कहा तमाम इक़दाम काश्तकारों के हक के लिए उठाए जा रहे हैं। सरप्लस स्टॉक होते हुए क्रशिंग सीजन शुरू करने से काश्तकारों की रुकूम फंस जाएंगी, क्योंकि मार्केट में चीनी की फरोख्त न होने के बराबर है। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतअद्दिद बार विफाकी हुकूमत को चीनी की एक्सपोर्ट बारे खतूत लिखे गए। यह मुतालबा भी किया गया कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की फौरी इजाज़त दी जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से इंडस्ट्री भी चलेगी और किसानों को भी फायदा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ये कहना है कि दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर ब्रह्मदाग बुगटी वापस आना चाहता है तो हम डायलॉग के लिए तैयार है। बशीर ज़ैब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं तो किससे मुज़ाकरात करें? बशीर ज़ैब और मारंग बलोच मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, अभी सुनिए। देखिए, लार्ज स्केल ऑपरेशन की महज ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो थ्रेट कैपेसिटी है वैसे तो उस पर हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अपनी फोर्सेस को यूज़ करते हैं थ्रेट को देखते हुए। अगर थ्रेट थोड़ा है तो आर्म फोर्स को यूज़ किया जाता है, फिर पैरामिलिट्री है और फिर मिलिट्री है। अब आप देखें ना कि उनकी कैपेसिटी का अंदाज़ा इससे लगा लें कि सॉफ्ट टारगेट्स को तो वो ढूंढ के बड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन जहां उनके सुसाइडल्स गए हैं, जो बेला में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी या सॉरी एफसी की, उसमें तो वो कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं कर सके हैं। ये वहां जाते हैं, एक 2-2 हज़ार किलोमीटर की सड़कें हैं। आपको पता है कि हुकूमत को या रियासत को 1-1 इंच प्रोटेक्ट करना होता है और वो किसी 1 इंच पे उन्होंने ब्रीच करना होता है। और ये जो टाइम है इसकी लिबर्टी भी उनके पास है, और वो जगह जो है जो सिलेक्ट करनी है जहाँ पर वो अटैक करते हैं उनकी लिबर्टी भी उनके पास होती है। और वो साफ टारगेट ढूंढते हैं, मासूम मुसाफिरों को उतारते हैं और उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर देते हैं। तो जाहिर है हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। हम लार्ज स्केल ऑपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम स्मार्ट काइनेटिक अप्रोच जो है या आईबीओस जो हैं उनको इन्हांस करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने मासूम लोगों का खून बहाया है, वो मुकद्दस खून का बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। बीआरटी पेशावर से मुतालिक नाक़िस मनसूबाबंदी और डिज़ाइन में बार बार तब्दीली। बीआरटी ने सूबे को मज़ीद 2.5 अरब रुपए से ज़ायद का टीका लगा दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक बीआरटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हुकूमत ने मामला तय कर लिए हैं। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेगा मंसूबा BRT शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रहा है। ख़ास तौर पर मंसूबे के डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों के बायस जहाँ की जो मुकर्ररा की वक्त था वो उससे ज़्यादा इसको मुकम्मल टाइम पर मुकम्मल किया गया, बल्कि इसकी जो लागत थी उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। 41 बिलियन इब्तदाई तौर पर ये इसकी लागत थी, जो कि मुकम्मल होने तक 71 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। ताहम अदायगियों के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो मुतमईन नहीं थे और इस हवाले से 2 दफ़ा इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस से उन्होंने रब्ता किया, जहां पर उन्होंने 152 अरब 19 करोड़ रुपए का दावा किया गया था कि वो उन्हें अदा किया जाए। ताहम अब हुकूमत की जानिब से इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट्स जो है वो तय करने का फैसला कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से काबीना इजलास के एजेंडे में भी इसे ज़ेर बहस लाया गया और अब मामलात जो हैं वो 2 अरब 60 करोड़ रुपए तक ले आए हैं। हुकूमत अब जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 अरब 60 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला किया गया। आगाह करे थे।